رات کے آخری پہر جب سارے گھر میں خاموشی چھا جاتی تو زینب کا دل کانپ اٹھتا تھا۔ بچوں کے کمروں کے دروازے بند، روشنی مدھم اور باہر برآمدے میں جلتا ہوا ایک بلب جیسے کوئی گواہ بن کر سب کچھ دیکھ رہا ہو۔ زینب کئی مہینوں سے محسوس کر رہی تھی کہ کچھ غلط ہو رہا ہے۔ ناصر، اس کا شوہر جو کبھی محبت کا پیکر تھا، اب بدل چکا تھا۔ اب اس کی باتوں میں سختی، آنکھوں میں وحشت اور لمس میں عجیب و درندگی محسوس ہوتی تھی۔ وہ رات جب پہلی بار اس نے دیکھا کہ ناصر بچوں کے سامنے ہی زینب کے قریب آنے لگا، زینب کا دل کانپ اٹھا۔ وہ اسے پیچھے ہٹانے کی کوشش کرتی مگر ناصر ہنستا، یہ تو ہمارے اپنے بچے ہیں زینب، کیا چھپانا۔ زینب کے دل میں شرم، خوف اور گناہ کا احساس ایک ساتھ ابھر آیا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے لیکن ناصر کے چہرے پر بے حسی چھا رہی تھی۔ اگلی صبح زینب نے قرآن کھولا، بے شک اللہ تم پر نگران ہے۔ اس کی نگاہیں ان الفاظ پر جم گئی۔ زینب کے دل میں جیسے کوئی آگ لگ گئی۔ اس نے سوچا اگر آج بھی خاموش رہی تو کل میرا حساب بھی انہی آنکھوں کے سامنے ہوگا جنہیں میں نے بچایا نہیں۔ اسی شام جب وہ بازار گئی، واپس لوٹی تو دروازے سے اندر داخل ہوتے ہی دل دھڑک اٹھا۔ کمرے میں ہلکی سی سسکیوں کی آواز تھی۔ زینب نے لپک کر دروازہ کھولا اور جو منظر اس نے دیکھا اس کی روح کانپ گئی۔ اس کا شوہر ناصر، بیٹی مریم 12 سال کے قریب بیٹھا تھا اور بچی کے چہرے پر خوف کے سائے تھے۔ زینب کے منہ سے چیخ نکلی، اللہ کے بندے یہ کیا کر رہے ہو؟ ناصر چونک کر پیچھے ہٹ گیا مگر اس کے چہرے پر پریشانی نہیں تھی بلکہ ایک وحشیانہ مسکراہٹ تھی۔ زینب نے بیٹی کو سینے سے لگا لیا اور قرآن کی قسم کھا کر کہا، اب اگر میں بولی نہیں تو قیامت کے دن میری زبان گواہی دے گی۔ رات گزر چکی تھی مگر زینب کی آنکھوں سے نیند غائب تھی۔ بیٹی مریم اس کے سینے سے لگی ہوئی تھی اور بار بار ہچکیاں لے کر روتی جاتی تھی۔ زینب کی نظریں چھت پر جمی تھیں جیسے وہ اللہ سے سوال کر رہی ہو، یا اللہ میں نے کیا گناہ کیا ہے، کس امتحان میں ڈال دیا تو نے مجھے؟ کمرے کے باہر ناصر کے قدموں کی چال سنائی دی۔ زینب نے بیٹی کو اور زور سے لپٹ لیا۔ ناصر دروازے کے قریب آیا، ایک لمحے کے لیے رکا، پھر دھیمے لہجے میں بولا، زینب میں نے کچھ غلط نہیں کیا، تم فضول بات کو بڑھا رہی ہو۔ زینب کے اندر جیسے لاوا ابھر پڑا، ناپاک زبان بند کر لو ناصر، اللہ سے ڈرو، جو تم نے کیا وہ نہ صرف جرم تھا بلکہ عرش الہی کو ہلا دینے والا گناہ ہے۔ ناصر نے کہکا لگایا، سب عورتیں یہی کہتی ہیں مگر آخرکار خاموش رہ جاتی ہیں۔ زینب نے بیٹی کی طرف دیکھا، وہ کانپ رہی تھی، اس کے چہرے پر خوف کی لکیریں تھیں۔ زینب کے دل سے فیصلہ کر لیا، میں خاموش نہیں رہوں گی چاہے دنیا میرا ساتھ دے یا نہ دے۔ فجر کی اذان گونجی، زینب نے وضو کیا، آنکھوں میں آنسو تھے۔ اس نے سجدے میں سر رکھا اور کہا، یا اللہ مجھے ہمت دے، میں کمزور عورت نہیں بننا چاہتی، میری بیٹی کی حفاظت میری ذمہ داری ہے اور میں جانتی ہوں ظلم کے سامنے خاموشی بھی گناہ ہے۔ نماز کے بعد زینب مسجد کے امام مولانا عبدالحق کے پاس گئی۔ مولانا ایک نیک اور تعلیم یافتہ عالم تھے۔ زینب کے لرزتے لبوں سے الفاظ ٹوٹ ٹوٹ کر نکلے، مولانا صاحب میرا شوہر میرے بچوں کے ساتھ۔ اس کے بعد الفاظ اس کے گلے میں اٹک گئے۔ مولانا صاحب کے چہرے پر گہری سنجیدگی چھا گئی، بیٹی اللہ تمہارے ساتھ ہے، جو ظلم تمہارے گھر میں ہو رہا ہے اسے چھپانا نہیں بلکہ روکنا تمہارا فرض ہے۔ اسلام کو عورت کو ظلم برداشت کرنے کا نہیں بلکہ ظلم کے خلاف اٹھ کھڑے ہونے کا حکم دیتا ہے۔ مولانا نے زینب کو خواتین کے فلاحی ادارے کا پتہ دیا جہاں وہ مدد حاصل کر سکتی تھی۔ زینب کے دل میں پہلی بار روشنی سی جاگی، جیسے برسوں کے اندھیرے میں کسی نے چراغ جلا دیا ہو۔ ناصر گھر آیا اور زینب عام دنوں کی طرح خاموش نہیں تھی۔ اس نے 2 کپ چائے رکھی اور سیدھی آواز میں کہا، ناصر میں کل تمہارے ساتھ تھانے چلوں گی، تمہیں اپنے کیے کا جواب دینا ہوگا۔ ناصر کے چہرے رنگ پر اڑ گیا، پاگل ہو گئی ہو زینب، دنیا کیا کہے گی، محلہ کیا کہے گا؟ زینب نے پرسکون لہجے میں کہا، دنیا کچھ بھی کہے، میرے رب نے فرمایا ہے بے شک اللہ ظالموں کو پسند نہیں کرتا، میں اپنی بیٹی کا تحفظ کر رہی ہوں اور یہ عبادت ہے، نافرمانی نہیں۔ ناصر نے غصے سے کپ پھینکا اور باہر نکل گیا۔ زینب نے کھڑکی سے دیکھا، آسمان پر بادل گہرے ہو رہے تھے لیکن اسے لگ رہا تھا جیسے اس کے اندر کا بوجھ ہلکا ہو رہا ہے۔ زینب نے قرآن کھولا، نہ کمزور پڑو نہ غم کرو، تم ہی غالب رہو گے اگر ایمان والے ہو۔ اس آیت نے زینب کے اندر نیا حوصلہ بھرا، اب وہ صرف ایک ماں نہیں رہی تھی، وہ ایک مجاہد بھی بن چکی تھی جو ظلم کے خلاف کھڑی ہے۔ صبح کا وقت تھا، سورج کی ہلکی روشنی پردوں سے چھن کر اندر آ رہی تھی۔ زینب نے جیسے ہی آنکھ کھولی، مریم اس کے پہلو میں سوئی ہوئی تھی۔ بیٹی کے چہرے پر پرسکون تو تھا مگر آنکھوں کے نیچے ہلکی سرجن گزری رات کے زخموں کا پتہ دے رہی تھی۔ زینب نے آہستہ سے بیٹی کے ماتھے پر بوسہ دیا، پھر وضو کیا، 2 نفل پڑھے اور ہاتھ اٹھا کر دعا کی، یا اللہ مجھے اپنے انصاف پر یقین ہے، تم کے ظلم کے خلاف میرا قدم تیرے نام پر ہے، مجھے تنہا نہ چھوڑنا۔ زینب کے قدم کانپ رہے تھے مگر دل مضبوط تھا، مولانا عبدالحق بھی اس کے ساتھ تھے۔ اندر کے ماحول میں سردی، بے حسی اور خوف بسا ہوا تھا۔ تفتیش افسر نے فائل بند کرتے ہوئے کہا، بی بی آپ کو پتہ ہے نا آپ اپنے شوہر کے خلاف بیان دے رہی ہیں، یہ معمولی بات نہیں ہے۔ زینب نے سیدھی آنکھوں سے جواب دیا، مجھے معلوم ہے مگر وہ میرا شوہر نہیں بلکہ ایک ظالم انسان ہے اور اگر میں چپ رہی تو یہ جرم بڑھتا جائے گا، اسلام میں انصاف چھپانے والے پہ لعنت ہے۔ صاحب افسر نے ایک لمحے کو نظریں جھکا لی پھر قلم اٹھا کر رپورٹ لکھنا شروع کر دی۔ مولانا عبدالحق کے چہرے پر اطمینان کی جھلک تھی۔ زینب نے پہلا قدم اٹھا لیا تھا۔ اگلے جمعے مولانا عبدالحق نے خطبے میں کہا، مسلمان وہ نہیں جو صرف نماز پڑھے بلکہ وہ ہے جو ظلم کو ظلم کہے، جو اپنی بیٹیوں، اپنی عزت
और अपने घर के अमन के लिए अल्लाह के कानून पर खड़ा हो जाए। जो औरत जुल्म के खिलाफ उठ खड़ी हो वो कमज़ोर नहीं, वो मोमिन है। पूरे मोहल्ले में ये बात फैल गई। कुछ औरतें ज़ैनब के घर आई, किसी ने कहा हम तुम्हारे साथ हैं, किसी ने सरगोशी की बस कर दो ज़ैनब, शोहर का नाम बदनाम हो जाएगा। ज़ैनब ने मुस्कुरा कर जवाब दिया, अगर किसी का नाम जुल्म से बच जाए तो बदनामी बेहतर है, ये निस्बत जहन्नम की अजाब है। शाम को दरवाज़ा जोर से खुला, नासर अंदर आया, आंखों में गुस्सा, हाथ में बोतल। ज़ैनब तुमने मेरा तमाशा बना दिया है। ज़ैनब चुप रही मगर इसकी कमोजी चीख बन चुकी थी। नासर करीब आया मगर इस बार ज़ैनब ने हाथ उठा दिया। रुक जाओ नासर, आप एक कदम भी मेरी या मेरी बेटी के करीब मत आना। मैं तुमसे नहीं अल्लाह के इंसाफ से डरती हूँ और तुम्हें भी डराना चाहती हूँ। नासर के कदम जैसे ज़मीन पर दंस गए। और ये वो ज़ैनब नहीं थी जो कभी खामोश रहती थी, ये वो औरत थी जो ईमान से मजबूत हो चुकी थी। नासर की आंखों में वहशत थी मगर ज़ैनब के अल्फाज ने इसके अंदर की शैतान को लड़सा दिया। मरियम माँ के साथ बैठी थी, इसने आयशा से कहा, अम्मी आपको डर नहीं लगता? ज़ैनब मुस्कुरा कर कहा, जब अल्लाह साथ हो तो डर कैसा? हाँ मजलूम है मरियम, मजलूम की दुआ सीधी अर्श तक पहुंचती है। बेटी ने माँ का हाथ थामा और पहली बार कहा, अम्मी आप मेरी हीरोइन हैं। ज़ैनब की आंखों से आंसू बह निकले कि यह कमजोरी के नहीं कुव्वत ईमान के आंसू थे। अदालत के बड़े दरवाजे पर जब ज़ैनब पहुंची तो हुआ ऐसा के कदमों से उलझ गई थी। अमारत के सतों समान को छूते थे मगर ज़ैनब के लिए ये सतों जुल्म और उम्मीद के दरमियान की दीवार लग रही थी। इसने बेटी मरियम का हाथ थामा। मौलाना अब्दुल हक और दो ख्वातीन रज़ाकार साथ थीं। दिल में जिक्र जारी था, अल्लाह मेरे लिए काफ़ी है, इस पर मेरा भरोसा है। जबकि कुर्सी पर एक बावकार शख्स बैठा था, चश्मे के पीछे से उसकी नजरें गहरी थी। जब केस का ऐलान हुआ, ज़ैनब बिनते असलम बमुकाबला नासिर बिन करीम तुम कमरा अदालत में सरगोशियां गूंज उठी। नासिर के चेहरे पर गुरूर और नरमी थी। इसके वकील ने झुककर कहा, बस आंसू बहाने वाली कहानी सुनाएगी, हम सच को झूठ साबित कर देंगे। ज़ैनब ने सर झुकाकर बिस्मिल्लाह पढ़ी, जनाब जज साहब मैं कोई आलम नहीं, ना ही कानून जानती हूँ, मैं बस एक माँ हूँ और एक बेटी की फरियाद लेकर आई हूँ। मेरे शोहर ने वो हद पार की जिससे ना इंसानियत कबूल करती है ना शरीयत। मैंने बहुत बर्दाश्त किया, सोचा शायद वो बदल जाए, मगर जब बात मेरे बच्चों तक पहुंची तो मैंने चुप रहना गुनाह समझा। अल्लाह गवाह है, मैं किसी इंतकाम की नहीं, इंसाफ की तलाश में आई हूँ। कमरा अदालत में सन्नाटा छा गया। जज के चेहरे पर तासरात बदले। नासिर का वकील कुछ बोल नहीं वाला था कि ज़ैनब ने कहा, मेरे पास गवाह भी हैं, मेरी बेटी, मेरा रब और मेरा ज़मीर। नासिर के वकील ने कहा, मोहतरम अदालत, ये औरत ज़हनी दबाव में है, शोहर के किरदार पर इल्ज़ाम लगा रही है ताकि हर जाना ले सके। नासिर ने मसनूई आंसू बहाते हुए कहा, मैं अपनी बेटी से मोहब्बत करता हूँ। ये सब साजिश है मौलवियों की जो मेरे घर को बर्बाद करना चाहते हैं। ज़ैनब ने खामोशी से सिर्फ एक जुमला कहा, जो मोहब्बत को जुल्म बना दे, इसे मोहब्बत कहने का हक नहीं। जज ने फाइल बंद की। अदालत मजीद शुहादत देखेगी। अगली तारीख मुकर्रर की जाती है। ये जुमला ज़ैनब के लिए बिजली बनकर गिरा। दिल में आया कि शायद ये जंग बहुत लंबी है, लेकिन मौलाना अब्दुल हक ने इसके कंधे पर हाथ रखा। बेटी सब्र कर, अल्लाह के यहाँ देर है अंधेर नहीं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मजलूम की दुआ और आसमान के दरमियान कोई पर्दा नहीं, यकीन रख हक जाहिर होगा। ज़ैनब की आंखों से आंसू बह निकले, लेकिन लबक पर शुक्र के अल्फाज थे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं अकेली नहीं। घर लौटते वक्त ज़ैनब ने आसमान की तरफ देखा। चांद बादलों में छुपा हुआ था मगर कभी कभार झलक दिखाता था। उसे लगा जैसे अल्लाह कह रहा हो, मैं छुपा नहीं, बस देख रहा हूँ कि कौन मेरा भरोसा करता है। ज़ैनब ने मरियम का हाथ थामा। बेटी, अगर आज हमारा सब्र कायम रहा तो कल अल्लाह खुद बोलेगा, मेरी बंदी, तेरा इंसाफ मैंने खुद किया। अल्लाह के अंधेरे में जब हर तरफ खामोशी नहीं तो ज़ैनब के घर के बाहर किसी का कदमों की चाप सुनाई दी। खिड़की से झांका तो साए में कोई खड़ा था। दिल एक लम्हे के लिए लरस गया। वो नासिर था, शराब के नशे में, आंखों में वहशत, हाथ में कोई लोहे की चीज। वो दरवाजे पटकते हुए चिल्ला रहा था, ज़ैनब अदालत में मेरा नाम लेकर दिखाओ, मैं तुम्हें और मौलवियों को सबक सिखाऊंगा। मरियम खौफ से माँ के पीछे छुप गई। ज़ैनब ने दरवाजे के पार से पुकारा, नासिर अल्लाह से डरो, तुम्हारा जुल्म खत्म हो चुका है, अब तुम्हारा वक्त शुरू हुआ है। पड़ोस में मौलाना अब्दुल हक का घर था। आवाज़ सुनकर वो बाहर निकल आए। कुछ और लोग भी आए। नासिर ने देखा कि लोग जमा हो रहे हैं तो वो अंधेरे में गायब हो गया। ज़ैनब दरवाजे से टेक लगाकर बैठ गई। आंसू बहते गए मगर होंठों से बस एक जुमला निकला, या अल्लाह तू ही मेरा मुहाफ़िज़ है। रात स्याह थी, बादल गरज रहे थे और हवा में तूफान के आसार थे। ज़ैनब ने मरियम को गोद में लेकर कहा, वो स्कूल के होमवर्क के बाद सो गई थी। ज़ैनब कुरान पाक पढ़ रही थी जब दरवाजे पर जोरदार दस्तक हुई। दिल धड़कने लगा। खिड़की से देखा, नासिर खड़ा था, चेहरा वैशी, हाथ में कोई थैला। ज़ैनब दरवाज़ा खोलो वरना तोड़ दूंगा। ज़ैनब के लबों से बेख्तियार निकला, औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। इसके हाथ कांप रहे थे मगर दिल मजबूत था। इसने मौलाना अब्दुल हक को फ़ोन किया, मौलाना साहब वो आ गया है। मौलाना ने फ़ौरन पुलिस को इत्तला दी। नासिर अब दरवाज़ा पीट रहा था, तुमने अदालत में मेरे खिलाफ बोलकर अपनी कब्र खुद खोद ली है ज़ैनब ने बेटी को अपने पीछे किया। मैंने जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाई है, कब्र नहीं ईमान की बुनियाद रखी है। दरवाज़ा ज़ोर से खुला, नासिर अंदर घुस गया, लेकिन इसी लम्हे बाहर से पुलिस की गाड़ियों की आवाज़ सुनाई दी।
नासिर ने मुड़कर देखा, दरवाजे पर पुलिस हलकार और मौलाना अब्दुल हक खड़े थे। इसके नासिर के हाथ से थैला गिरा, अंदर से चाकू, बोतल और एक जलती हुई माचिस थी। पुलिस ने इसे पकड़ लिया। नासिर धारियां मारने लगा, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं ज़ैनब। ज़ैनब की आंखों में आंसू थे, लेकिन इसके होठों से अल्हम्दुलिल्लाह ने कहा, अल्लाह ज़ालिम को मोहलत देता है मगर छोड़ता नहीं। ज़ैनब थाने पहुंची। नासिर कैद में था और इसका चेहरा टूटे गुरूर की तस्वीर था। वो चीख कर कहने लगा, ज़ैनब तुमने मेरी इज्जत खाक में मिला दी। ज़ैनब ने पुरस्कुर लहजे में कहा, तुमने इज्जत का मफहूम खुद मिटा दिया। नासिर, मैंने सिर्फ सच बोला और सच अल्लाह का नाम है। मौलाना अब्दुल हक ने करीब आकर कहा, बेटी अल्लाह ने आज तुम्हें फतह दिया, लेकिन याद रखना असल कामयाबी दुनिया की अदालत में नहीं, रब की अदालत में है। ज़ैनब ने सर झुका कर कहा, मौलाना साहब मैं अपने रब को से यही दुआ मांगती हूँ कि वो मुझे मजलूम की आवाज़ बनाए। मैं नहीं चाहती कोई और औरत मेरी तरह चुप रहे, खौफ में जिए और जुल्म को बर्दाश्त करे। कई दिन बाद जब फैसला सुनाया गया तो जज ने अपनी कुर्सी से उठकर कहा, कई दिन बाद जब ज़ैनब बिनते असलम, आपने ना सिर्फ अपने लिए इंसाफ मांगा बल्कि इस माशरे के ज़मीर को जगाया। अदालत मुजरिम नासिर बिन करीम को 25 साल कैद ब मुशक्कत की सज़ा सुनाती है। कमरा अदालत में खामोशी छा गई। ज़ैनब की आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन ये आंसू कमजोरी के नहीं शुक्र के थे। मौलाना अब्दुल हक ने कहा, अल्हम्दुलिल्लाह अकबर, ये वो दिन है जब एक औरत के सब्र ने शैतान के शिकस्त दी। ज़ैनब घर लौटी, आसमान साफ था, चांद रोशन। इसने मरियम के साथ बैठकर कुरान खोला। बेटी ने पूछा, अम्मी अब सब खत्म हो गया? ज़ैनब ने कहा, नहीं बेटी, ये इख्तिताम नहीं, ये आगाज है। अब हम अपनी कहानी उन औरतों तक पहुंचाएंगे जो अब अभी भी खामोश हैं। हम उन्हें बताएंगे कि अल्लाह खामोश ही नहीं रहता, जब मजलूम बोलता है तो अर्श हिल जाता है। मरियम ने माँ के सीने से लाकर कहा, अम्मी अब आप वाकई सबकी हीरो हो। ज़ैनब ने आसमान की तरफ देखा और दिल ही दिल में कहा, या अल्लाह मेरा सब्र कबूल कर ले और मुझे इन सब के लिए रोशनी बना दे जो अंधेरे में है। चांद के आला फैल गया, जैसे आसमान ने खुद गवाही दी हो कि जुल्म का वक्त खत्म हुआ और ईमान की सुबह तलू हो चुकी है। मौलाना अब्दुल हक ने ज़ैनब को अपने घर बुलाया। बेटी, तुम्हारा ईमान अब तुम्हारी डाल है। ये दुनिया जालिम के लिए तेज और साबिर के लिए आजमाइश है, लेकिन याद रखना अल्लाह सब्र करने वालों को साथ है। ज़ैनब ने कहा, मौलाना साहब कभी कभी लगता है मैं हार जाऊंगी। मौलाना मुस्कुराए, नहीं बेटी, जो अल्लाह के रास्ते में खड़ा हो वो हारता नहीं, वो आजमाया जाता है। नहीं, नबी अयूब को कभी आजमाया गया था और जब वो साबित कदम रहे तो अल्लाह ने फरमाया, हमने उसे बेहतरीन अंजाम दिया क्योंकि वो साबिर था। ज़ैनब के दिल में जैसे रोशनी भर गई। कुछ दिन बाद ज़ैनब अदालत गई। वहाँ एक नौजवान वकील इससे मिला। अहमद नाम था उसका, चेहरे पर वकार, बातों में नरमी। इसने कहा, मैं फलाही तंजीम से हूँ। मौलाना अब्दुल हक ने आपका केस बताया, अगर आप इजाज़त दे तो मैं आपका मुकदमा मुफ्त लड़ूंगा। ज़ैनब हैरान थी, मगर आप मुझे जानते भी नहीं, फिर क्यों मदद करना चाहते हैं? अहमद ने मुस्कुराकर कहा, मैंने अपनी माँ को भी जुल्म के खिलाफ लड़ते देखा था और कुरान कहता है कि जो किसी एक मजलूम की मदद करे गोया उसने पूरी इंसानियत की मदद की। ज़ैनब के दिल में शुक्रगुजारी के आंसू बह आए। अल्लाह ने वाकई कहीं ना कहीं से रहमत भेज दी थी। अगली पेशी पर अहमद रजा ने ज़ैनब का मुकदमा संभाला। इसने अदालत में दलाइल देते हुए कहा, मोहतरम जज साहब, ये केस सिर्फ एक औरत का नहीं, ये उस माशरे का इम्तहान है जहाँ इज्जतदार औरत को इंसाफ मांगने पर मुजरिम समझा जाता है। इस्लाम ने औरत को पर्दे के साथ इज्जत दी है, खामोशी के साथ जुल्म सहने का हुक्म दिया है। कमरा अदालत में सन्नाटा छा गया। जैसे ही जज ने संजीदगी से फाइल बंद की, नासिर की आंखों में पहली बार खौफ के साए दिखाई दिए। ज़ैनब घर लौटी तो मरियम ने पूछा, अम्मी क्या हमें जितवाया जाएगा? कि ज़ैनब ने बेटी के चेहरे को सहलाया और कहा, बेटी, जीत या हार इंसान की नहीं होती, नीयत की होती है। अगर हम सच पर हैं तो हम पहले ही जीत चुके हैं। दोनों ने इकट्ठे कुरान खोला। ज़ैनब ने आयत पढ़ी, बेशक तंगी के बाद आसानी है, और दिल से दुआ किया, अल्लाह हर रात ये रात तवील सही मगर तेरा इंसाफ कभी अंधेरा नहीं होता। अदालत के फैसले को 3 महीने गुजर चुके थे। ज़ैनब ने अब अपनी ज़िंदगी को एक नई राह पर ले जा रही थी। इसने मरहम के नाम पर एक अदारा बनाया जो जहां जुल्म, ज्यादती और घरेलू तशद्दुद का शिकार औरतें पनाह और कानून मदद हासिल कर सकती थी। मौलाना अब्दुल हक इस अदारे के रूहानी सरपरस्त बने, जबकि अहमद रजा एक नौजवान वकील है और इसके कानूनी मस्टर के तौर पर शामिल हुआ। अहमद रजा नरम लहजे वाला, कुरान और सुन्नत को समझने वाला और इंसानियत की खिदमत को ईमान का हिस्सा बनाने वाला शख्स है। ज़ैनब और अहमद जब पहली बार अदारे के कागजात पर बैठे तो ज़ैनब ने कहा, मैं ऐसा मरकज़ बनाना चाहती हूँ जहाँ औरत को कमज़ोर नहीं इंसान समझा जाए। अहमद ने मुस्कुरा कर कहा, इंशाल्लाह ये अदालत सिर्फ औरतों के लिए नहीं, उन सब के लिए होगा जो जुल्म के खिलाफ बोलने से डरते हैं। हर जुम्मे मौलाना अब्दुल हक मरहम में दर्स कुरान देते, इनके अल्फाज लोगों के दिलों पर उतर चले जाते। बेटियों, इस्लाम तुम्हें चुप रहने का नहीं, बाइज्जत जीने का दर्स देता है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जालिम का हाथ पकड़ो, अगर ना पकड़ो तो तुम भी मुजरिम हो। इन दर्सों में आंसू बहते, दिल बदलते और औरतें अपने खौफ से आज़ाद हो जाती हैं। एक दिन एक औरत आई, चेहरे पर जख्मों के निशान, दिल में उम्मीद की किरण। मेरा शोहर मुझ पर जुल्म करता है मगर मैं अपने बच्चों के लिए चुप रहती हूँ। ज़ैनब ने इसका हाथ पकड़ा, बहन तुम्हारी खामोशी जुल्म को ताकत दे रही है। अल्लाह कहता है, अल्लाह सब्र करने वालों को साथ है, मगर सब्र जुल्म सहने का नहीं, हक पर कायम रहने का नाम है। वो औरतें ज़ैनब के गले लगकर रोने लगी। ये वो लम्हा ज़ैनब के लिए इनाम था
एक दिन अहमद रजा फाइल लेकर आया। ज़ैनब साहबा, ये एक नया केस आया है। पुलिस वालों ने इसे हादसा कहा, मगर मेरे ख्याल में ये कत्ल है। ज़ैनब ने फाइल खोली, तस्वीर देखकर आंखें नम हो गईं। ये एक लड़की आयशा जो मदरसे में पढ़ती थी, जहर देकर मार दी गई। कहा गया इसने खुदकुशी की है, मगर ज़ैनब ने कहा सच कभी छुप नहीं सकता। हम ये केस लड़ेंगे। मौलाना अब्दुल हक ने दुआ दी, अल्लाह तुम्हें हिम्मत दे बेटी। ये लड़ाई सिर्फ अदालत में नहीं, दिलों में भी लड़ी जाती है। जब केस मशहूर हुआ तो ज़ैनब को धमकियां मिलने लगी। रात के अंधेरे में फ़ोन आता, बाज आ जाओ वरना तुम्हें आयशा की तरह मारी जाओगी। अहमद ने मशवरा दिया, हम सिक्योरिटी पर हाथ देते हैं। ज़ैनब ने कहा, मेरी हिफाजत अल्लाह के हाथ में है अहमद। अगर हम डर कर पीछे हटे तो हक को राह पर कौन चिल्लाएगा। इसी रात ज़ैनब ने ख्वाब देखा कि एक नूरानी चेहरा जो कह रहा था कि बेटी तुम अकेली नहीं, हर मजलूम की दुआ तुम्हारे साथ है। अल्लाह तुम्हारी रोशनी बनाएगा अंधेरों में रहने वालों के लिए। ज़ैनब जागी तो आंखों में आंसू थे, मगर दिल में एक अजीब सा सुकून छा गया। इसने तो हजरत परी और अल्लाह से कहा, यार अब अगर मेरा मकसद तेरे लिए है तो मुझे कभी न झुकने देना चाहिए। दुनिया मेरा दुश्मन बन जाए। आयशा केस की पहली समाअत थी। पुलिस ने झूठ बयानात दिए, मगर अहमद ने सबूतों के साथ बेनकाब कर दिया। मौलाना अब्दुल हक भी अदालत में मौजूद थे और इनके लबों पर मुसलसल दुआ थी। ज़ैनब ने फैसला सुनाया, मगर फिर मौलाना की ज़ुबान से अल्लाहु अकबर निकला। ज़ैनब के अदारे मरहम को एक पूरे शहर में शोहरत मिल चुकी थी। हर रोज़ कोई ना कोई औरत इंसाफ की आस में वहाँ आती, मगर जैसे जैसे अदारा मजबूत हो रहा था, जुल्मों के दिलों में खौफ और गुस्सा बढ़ता जा रहा था। एक रात ज़ैनब अपने दफ्तर में केस फाइल देख रही थी कि दरवाज़ा खटका। अहमद रजा आया। चेहरे पर तशवीश थी। ज़ैनब साहबा, मुझे लगता है कोई हमें टारगेट कर रहा है। मैंने आज 2 नामालूम लोगों को तुम्हारे घर के करीब देखा। ज़ैनब ने पुरसुकून लहजे में कहा, अहमद साहबा, जब इंसान सच बोलता है तो बातिल के कान जलते हैं। अगर मेरा कलम बंद भी हो गया तो मेरा पैगाम इन दिलों में जिंदा रहेगा जो अल्लाह पर यकीन रखते हैं। अहमद ने नजरें झुकाकर कहा, आपके हौसले की कसम, ईमान भी आपसे सबक लेता है। इसी रात तकरीबन 3 बजे ज़ैनब के घर के करीब गोलियां चली, शीशे टूटे। मरियम चीख कर माँ के गले लग गई। ज़ैनब ने कुरान उठाया और कहा, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। पुलिस की ओर इतला दी गई, हमलावर फरार हो गए, मगर ज़ैनब का चेहरा पुरसुकून था। मौलाना अब्दुल हक सुबह आए। उन्होंने ज़ैनब के सर पर हाथ रखा और कहा, बेटी ये अल्लाह का इम्तिहान जो ईमान पर साबित कदम रहे, अल्लाह इसे दुनिया और आखिरत दोनों में कामयाब करता है। ज़ैनब ने आंसू साफ करते हुए कहा, मैं पीछे नहीं हटूंगी। मौलाना साहब, ये खून मेरी खौफ की दीवार नहीं बनेगा, बल्कि इस कौम की बेटियों के लिए एक हौसले का इल्म बनेगा। चंद दिन बाद अहमद एक फाइल लाया। ये लोग सिर्फ औरतों को नहीं, इंसानियत को मार रहे हैं। ज़ैनब, हमें ये पूरा माफिया बेनकाब करना होगा। ज़ैनब ने फाइल खोली। अंदर सियासतदानों, पुलिस ऑफिसर और मजहबी लिबास में छुपे मुजरिमों की तस्वीरें थी। ज़ैनब ने कहा, ये वो लोग हैं जो कुरान पढ़कर जुल्म करते हैं। इनका हिसाब सिर्फ अदालत नहीं, अर्श का मालिक लेगा। अहमद ने कहा, मैं तुम्हारे साथ आखिरी दम तक हूँ। एक दिन ज़ैनब अदालत जा रही थी। रास्ते में अचानक गाड़ी के टायर फट गए। ड्राइवर ने कंट्रोल खो दिया, गाड़ी पलट गई। ज़ैनब जख्मी हालत में अस्पताल पहुंची। डॉक्टरों ने कहा हादसा नहीं था, ये ब्रेक कट किए गए थे। मौलाना अब्दुल हक अस्पताल पहुंचे। ज़ैनब की आंखें नीम हुआ थी, लबों पर हल्की मुस्कुराहट। मौलाना साहब, अगर मैं ना रही तो मेरा मिशन आगे बढ़ाइएगा। मौलाना की आंखों में आंसू। आगे नहीं बेटी, अल्लाह के वली ऐसे नहीं मरते, वो जिंदा रहते हैं दिलों में रोशनी बनकर। चंद हफ्ते बाद ज़ैनब सेहतयाब हुई। अहमद ने मरहम की जिम्मेदारी संभाल ली थी। ज़ैनब ने पहली बार वह व्हील चेयर पर बैठकर कुरान पढ़ा और कहा, मैंने देखा है कि जुल्म की तलवारें ईमान के चिराग को बुझा नहीं सकती, बल्कि हर जख्म रोशनी को और बढ़ा देता है। इसी दिन एक बच्ची सारा अदारे में आई, चेहरे पर खौफ, आंखों में सवाल। आंटी, क्या अल्लाह वाकई मजलूम को देखता है? ज़ैनब ने मुस्कुराकर कहा, हाँ बेटी, अल्लाह हर आंसू गिनता है और जब वक्त आता है वो इंसाफ जमीन पर उतारता है। कुछ महीने बाद मरहम के सालाना प्रोग्राम में सैकड़ों औरतें जमा हुई। ज़ैनब व्हील चेयर पर बैठी माइक उठाया और कहा, मैं कोई हीरो नहीं, मैं एक औरत हूँ जो टूटी गिरी मगर ईमान से जुड़ी रही। मैं चाहती हूँ कि हर औरत अपने अंदर के ईमान को पहचाने। जब तुम अल्लाह पर भरोसा करती हो तो पूरी दुनिया तुम्हें गिराने की कोशिश करे, मगर तुम नहीं गिरती, क्योंकि तुम्हें संभालने वाला अर्श वाला है। पूरा हाल अल्लाह अकबर की सदा से गूंज उठा। मौलाना अब्दुल हक की आंखों से आंसू बह निकले। अहमद रजा ने आसमान की तरफ देखा और कहा, ये औरत नहीं, ये उम्मत की माँ है जिसने खामोश चीखों को ईमान की सदा में बदल दिया है। तमाम चंद साल बाद मरहम मुल्क के हर शोबे में कायम हो चुका था। इसके दरो दीवार पर लिखा था, अल्लाह के बाद मजलूम का सहारा ईमान है। और दीवार के एक कोने पर ज़ैनब की तस्वीर लगी थी, चेहरे पर मुस्कुराहट और नीचे लिखा था, मैंने जुल्म नहीं सब्र को आवाज़ दी और सब्र हमेशा जीतता है।